وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک ہفتے سے خط کا ڈرامہ چل رہا ہے، معاملے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ بطور وزیر اعظم چاہتا ہوں پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، عسکری قیادت، امریکہ میں سابق سفیر بھی موجود ہوں۔ اگر رتی برابر بھی غیر ملکی سازش کا ثبوت ملا تو وہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں گے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا۔ ڈپٹی سپیکر صاحب نے وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے۔ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر even an iota of any shred of evidence خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ جناب اسپیکر، پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا۔ نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا جناب اسپیکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یکم اپریل سے کم از کم اجرت 25,000 روپے کرنے، سرکاری اور فوجی ملازمین کی پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں امید ہے سرمایہ کار اور صنعت کار 1 لاکھ روپے تک ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ کریں گے۔ صوبوں کے تعاون سے بازاروں اور محلے کی دکانوں میں رمضان پیکج کے تحت سستا آٹا دیا جائے گا۔ بے نظیر کارڈ دوبارہ لایا جائے گا۔ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے۔ شہباز شریف نے خود کو خادم پاکستان قرار دے دیا۔ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں۔ اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا۔ امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کے جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے۔ اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں۔ صوبوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے۔ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نہ خواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے۔ بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے۔ کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے۔ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور کے پی کے ہے۔ یہ 3 صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے، یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیڈ لاک کے بجائے ڈائیلاگ کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں تبدیلی باتوں سے نہیں آتی، زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ وزیر اعظم نے سابق حکومت کو اشعار کے ذریعے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک نہیں
डायलॉग से काम लेना पड़ेगा, फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। तब्दीली बातों से नहीं आती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई। साल साल लग जाएंगे, उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए कई साल लग जाएंगे। डूबती हुई कश्ती को बचाना है और दरिया के पार लगाना है तो खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता मासवाए इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, मेहनत मेहनत और मेहनत के। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को मशवरा है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। दोनों ममालिक को गुर्बत ख़त्म करने पर तवज्जो देना होगी। CPEC पाकिस्तान स्पीड से चलेगा। अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इख्तलाफात हुए, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं। आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों तरफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दे और खुशहाली लेके आएँ। कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, 50% इज शिफ्ट टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी तवज्जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बुलंद अफराते ज़र से निमटना और जमूद का शिकार मईशत को शुरू करना है। दूसरे ममालिक से बाहमी एहतराम, मसावात और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाह हैं। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो आवाम को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर मुबारकबाद देते हैं। ये फ़ख्र की बात है तमाम इदारे आइन को रहनुमा उसूल के तौर पर मानते हैं। अगर स्टॉक मार्केट और करेंसी मईशत की बेहतरी की निशानी है तो हमारे अहदाफ की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तीनों ने अपने इस्तीफ़े सदर ममलिकत को भिजवा दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़े उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स की मातहत काम नहीं कर सकते जिस पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल मकबून भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मंतखब होने और हल्फ उठाने की खुशी में मुल्क के बड़े छोटे शहरों में जश्न मनाया गया। लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी और मिठाई भी तकसीम की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खुशी में जश्न मनाया गया। कराची में शारा फैसल पर कारकुनों ने आतिशबाजी की। जश्न में MQM ने भी शिरकत की। रावलपिंडी में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के घर के बाहर कारकुनान जमा हो गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर खान की रिहाइशगाह के बाहर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, पार्टी तरानों पर रक्स किया। पेशावर में लीगी कारकुनों ने आतिशबाजी की और जश्न बनाया। मुल्तान में खातीन कारकुनों ने नवाबपुर रोड पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम की।
फैसलाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर नून लीगी कारकुनों का जश्न, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। नारोवाल में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर लीगी कारकुन बड़ी तादाद में जश्न मनाने निकल आए, भंगड़े डाले और नारेबाजी की। बिहाड़ी में लीगी एमपी मियां साकिब खुर्शीद की रिहाइशगाह पर आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम की गई। नौशहर फेरोज में ढोल की थाप पर मतवालों ने रक्स किया। पीर महल में मिठाइयां तकसीम की गईं, भंगड़े डाले गए और आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ। पाकपतन में कारकुन सड़कों पर निकल आए, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में रैली निकाली। भलवाल, चीचावतनी, दुनियापुर, कंगनपुर में कारकुनों ने जश्न मनाया, अपने कायदीन के हक में नारे लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से हटाकर हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और खुशहाली अब हमारा अगला कदम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 13 अप्रैल को पेशावर और 17 अप्रैल को कराची में जलसों से खिताब करेंगे। ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बुध को मैं इशा के बाद पेशावर में जलसा करूँगा। गैर मुल्की साजिश से हुकूमत की तब्दीली के ज़रिए हटाए जाने के बाद उनका ये पहला जलसा होगा, जिसमें शिरकत के लिए उन्होंने आवाम से अपील की है। इमरान खान ने कहा कि हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक बयान में बताया कि 17 अप्रैल को कराची में बाग़ जिना मज़ार क़ायद पर जलसा होगा, जिससे इमरान खान खिताब करेंगे। PTI ने 24 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिया है। रेफरेंस पार्टी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से स्पीकर ऑफिस में जमा कराए गए हैं। मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन, अलीम खान और असद खोखर ग्रुप से है। स्पीकर पंजाब असम्बली मुकर्ररा वक्त में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला करेंगे। अभी रेफरेंस पर स्पीकर की जानिब से कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ज़रा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़रा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन्ना ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने मुबैना ख़त की तहकीकात करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। इमरान खान और साबिक वज़रा के नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।